Hi everyone, myself Divya Tamrakar. Today I will explain the half part of chapter number 13, A Shelter So High. In first video, I'll explain the first part of this chapter, that a traveler, his name is Gaurav Jani, start a trip with his bike. That name is Loner, and they start their journey from Delhi to Leh Ladakh and Kashmir. Here he meet many peoples and he experienced many new things like live in a tent and morning freshness, breeze air. Then he saw a cold desert which is in Leh. Then he meet with Tashi and she saw Gaurav Jani a different types of home which is completely different from their Delhi or Mumbai's home. This is the house, Tashi's house, which is made by stone, mud, and they have a flat roof. After that, he meet a tribe which is a Changpa tribe, and they are live in 500 in a herd or in a group. There are only 500 peoples in a Changpa tribe, and they always move with their sheep and goats because this is their life and their livelihood, and God are their treasures. जो गॉड और शिप्स होते थे वो उनके ट्रेजर्स होते थे. व्हाट डिड यू मीन बाय ट्रेजर्स? ट्रेजर्स मीन्स you have to give answer in the comment section with your name that what is treasures mean. So moving on, here the world famous pashmina. It is believed that a pashmina shawl is warm as 6 sweaters. It is very thin yet very warm. The goat from which the soft pashmina wool is collected are found on very high altitude of 5,000 meters. In winter, the temperature here drop. Okay, the goat from which the soft pashmina wool is collected and found on very high altitude of 5,000 meters. In winter, the temperature here drop below 0 degrees Celsius or minus 40 degrees Celsius. A coat of warm hair grow on the goat's body, which protected from extreme cold. The goats shed some of their hairs in summer. This hair is so fine that 6 of this would be as thick as one hair of yours. The fine hair cannot be woven on machine, and so weavers of Kashmir make this shawl by hand. This is a long and difficult process. After almost 215 hours, 50 hours of weaving, one plain pashmina shawl is made. Imagine how long it would take to make a shawl with embroidery. जो चैंगपा ट्राइब्स के सारे पीपल्स थे वो जो गॉट और शिप को ग्रेस करवाते थे उनके फर से ही ये पश्मीना शॉल बनती है. ये पश्मीना शॉल 6 स्वेटर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वार्म देती है. इट मीन्स अगर आप 6 स्वेटर्स से आपको बॉडी में जितनी गर्मी लगेगी उतनी सिर्फ एक पश्मीना शॉल के पहनने से होती है. वो जो गॉट होते हैं एक्चुअल में वो बहुत कोल्ड वाले एरिया में रहते हैं, लाइक जिनका
0 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे यहाँ इन छत्तीसगढ़ द नॉर्मल टेम्परेचर इज 24 in a winter season, okay, 24 20, it's a normal temperature, okay, but in that particular place in Kashmir that is 0 डिग्री सेल्सियस and sometime it reach -डिग्री सेल्सियस also। जब प्लस में होता है ना डिग्री तो वार्म होता है, तो वेदर हॉट होता है, और जब माइनस में होता है तो वो कोल्ड हो जाता है। So there are different types of weather temperature in different state, as like Rajasthan is a have a hot climate. Rajasthan has a hot climate, and in Kanyakumari, Kerala, there are a rainy climate, and in the upper side of our India, means north side, it's a कोल्ड क्लाइमेट, ओके। सो जो शिप और गॉड्स होते हैं उनके फर उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं या डेवलप हो जाते हैं, जिनसे उनको उतना कोल्ड फील ना हो। सो उनका हेयर जो है वो इतना सॉफ्ट होता है, इतना थिन होता है। हम जो अपने हेयर्स के एक स्ट्रैंड लेते हैं ना, उसके भी 6 टाइमर थिन होता है। सो इतना थिन होने की वजह से वो मशीन में वोवन नहीं कर पाते हम। सो इट वीवर्स ऑफ कश्मीर मेक दैट टाइप ऑफ शॉल एंड स्वेटर बाय देयर ओन हैंड। वो अपने हाथ से ये उसको वीव करते हैं। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ऑलमोस्ट एक शॉल बनाने में 250 आवर्स लग जाते हैं। सो सोचिए कितना मेहनत का काम होता है। इट्स सो हार्ड वर्क फॉर दैट। Okay, as we stepped into the tent, I realized that I could stand up straight. It was not like my tent. I also saw that the rabo was as big as room of my flat in Mumbai. It was held up by 2 wooden poles in the middle. There was an opening to let out the smoke for the chulha. Namgyal told that the design of this tent is more than 1,000-year-old. The tent protected the Changpas from extreme cold. How cold must it be? In winters, the temperature dropped many degrees below zero. I told you na, when the degree drop below zero, it's become -degree and it is extreme cold. You can't imagine your hand get frozen. Okay, the wind blow at 70 km/h. Imagine if you were on a bus which was going at this speed, how far from you would you reach in 1 hour? सो जब गौरव जानी वो चैंगपा के टेंट में गया, सो वो टेंट के अंदर स्ट्रेट था ज़मीन, लेकिन गौरव जानी का टेंट जो था वो स्लोपी था अभी भी, क्योंकि वहाँ के लोग उस टेंट को बहुत अच्छे से बनाते थे। पहले वहाँ पे गड्ढा खोदा जाता है, उसके चारों तरफ टेंट लगाया जाता है और उस गड्ढे से लेवलिंग की जाती है जितने एरिया में वो टेंट रहता है। और वो अंदर से इतना बड़ा था जितना गौरव जानी की मुंबई में एक फ्लैट का जो एरिया था ना, उतना बड़ा उनका टेंट था। और एक छोटी सी ओपनिंग थी वहाँ पे स्मोक निकलने के लिए, जो चूल्हे से वो चूल्हा यूज़ करते थे। ओके, सो चूल्हे से जो स्मोक निकलती थी उसके लिए भी एक छोटी सी ओपनिंग थी। गौरव जानी जो कि चैंगपा के साथ नामग्याल के साथ घूम रहे थे, उन्होंने नामग्याल ने उनको बताया कि ये 1000 ईयर एगो से ये टेंट का जो डिज़ाइन है वो चलता आ रहा है, जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा ठंड में भी चैंगपा ट्राइब्स के लोग जो हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं, सेव रहते हैं। मतलब इमेजिन कीजिए आप, अगर हम अभी विंटर सीज़न में, अभी जैसे विंटर सीज़न आने वाला है, इट्स नवंबर, सो अगर विंटर सीज़न दिसंबर या जनवरी में जब आता है तो कितनी ठंड होती है हमारे यहाँ। हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते रात के टाइम में। बट जो चैंगपास ट्राइब होता है वो तो पूरा वहीं रहता है, पूरे कश्मीर में, लद्दाख में। सो ये जो रेबो टेंट है ये इनको प्रोटेक्ट करके रखता है एक्सट्रीम कोल्ड से।
विंटर सीजन में कई बार वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चले जाता है, और जो वहाँ पे एयर चलती है जो कि कन्वर्ट होती है विंड में, जब एयर स्पीड से चलती है तो उसे विंड कहा जाता है। नॉर्मल जो हवाएं चलती है दैट इज़ नोन एज एयर, बट जब वो स्पीड से चलती हैं तो उसको विंड कहते हैं। सो वो विंड 70 किलोमीटर पर आवर से, मीन्स 1 आवर में वो 70 किलोमीटर क्रॉस कर देती हैं, इतनी फास्ट चलती वो विंड। नियर द रेबो देयर वॉज अ प्लेस टू कीप शिप्स एंड गॉड्स। चैंगपा कॉल दिस लेखा। द वॉल ऑफ लेखा आर मेड with stone. Each family puts a special mark on their own animals. The women and young girls count and take the animals out of the lekha. They count them again every day when they bring them back for the evening. सो चैंगपास एक प्लेस होता है, एक शेड होता है जहाँ पे वो अपने एनिमल्स को लगते हैं, उन्हें लेखा कहते हैं। स्टूडेंट, आई हैव टू करेक्ट अ आंसर विच इज़ आई रोट ऑन द वर्कबुक। इस चैप्टर का जो वर्कबुक था उसमें एक क्वेश्चन है 1 वर्ड्स वाला, जिसमें पूछा गया है द प्लेस वेयर एनिमल्स लाइक शिप एंड गोट्स आर केप्ड। मैंने वहाँ लिखाया है बार्न, BARN। सो यू हैव टू करेक्ट देम, इट्स अ लेखा। ओके, बार्न भी कहते हैं बट इन लद्दाख दे आर कॉल्ड दिस लेखा। ओके, सो ये वाली स्पेलिंग आप लिख लेंगे, ये लेखा LEKHA। लेखा। ओके, सो फिर से कह रही हूँ, वर्कशीट में आपको मैंने लिखाया है 1 वर्ड है, आई थिंक 6 या 5th पॉइंट है, उसको आप करेक्ट कर लेंगे। ओके, बार्न के बगल में कॉमा डालेंगे और लेखा भी लिख लेंगे। ओके, सो वो प्लेस है जहाँ पे चैंगपास अपने एनिमल्स रखते हैं, और हर फैमिली अपने एनिमल्स में एक अलग मार्क करके रखी हुई रहती है। और जो यंग गर्ल्स हैं जो उनको ग्रेजिंग के लिए लेकर जाते हैं, यंग गर्ल्स एंड वुमेन्स, ये जब ग्रेजिंग करके वापस आते हैं तो भी ये उनको काउंट करते हैं और ले जाने के पहले भी काउंट करते हैं। दे काउंट देम एवरी डे। Okay, they count them again and again every day when they bring back in the evening, and they go to the morning every day. Now here, today's Srinagar. Now Gaurav Jani reached Srinagar. I spent a few days with Changpas, but sadly it was time to move on. My return journey would take me away from this special part of the world towards town which looked like a totally different world. This time I took a different route from Leh. I was going towards Srinagar via Kargil. I saw many more amazing buildings and different houses. I stayed in Srinagar for a few days. I was amazed by the houses there. They look my heart away. Some houses are on the mountains while some are on water. I took many pictures of this. See my photo album in page number 128. Now अब वो पहुँचे श्रीनगर। सो कुछ दिन गौरव जानी चैंगपास के साथ वहाँ पे रहे और फिर उन्होंने श्रीनगर की तरफ मूव ऑन किया। ये रिटर्निंग जर्नी जो है ये बहुत स्पेशल पार्ट है उनकी लाइफ का, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स एक्सपीरियंस की। अब उसने लेह जाने के लिए एक डिफरेंट रूट लिया जो कि नगर से होते हुए कारगिल से होते हुए श्रीनगर जाता है। डिड यू हर्ड अबाउट द कारगिल? आई थिंक यू हर्ड दैट इज अ कारगिल वॉर, okay, which is on the Leh Ladakh, and many of the soldiers are died and they are fight for our India with the Pakistan, and it is a very known war. Okay, Kargil war, you have to search it on your browsing site that what is a Kargil war.
वहाँ श्रीनगर में उन्होंने बहुत अमेजिंग बिल्डिंग्स देखी और गौरव जानी स्टे श्रीनगर फॉर अ फ्यू डेज. It's look like different houses as comparison to Mumbai and Delhi houses which is made by the cement and bridges. इतने सुंदर घर थे कि गौरव जानी का दिल खुश हो गया. जैसे हम खुश होते हैं तो कहते हैं ना कि हमारा दिल बाग बाग हो गया या मेरा दिल बाहर आ गया. इतनी ज़्यादा खुशी हुई गौरव जानी को. बहुत सारे घर जो थे वो माउंटेन्स में थे, कुछ जो थे वो वाटर पे भी थे. ओके, उन्होंने बहुत सारे पिक्चर्स लिए एंड इन द पेज नंबर 128 ही शेयर्ड दैट पिक्चर विद अस. दैट इज़ द हाउसेस ऑफ श्रीनगर. लुक, देर आर डिफरेंट हाउसेस ना. जैसे हमारे यहाँ होते हैं उनसे देखो कितने डिफरेंट हाउसेस हैं. दैट हाउसेस आर नोन एज हाउस बोट. ओके, विच हाउस on the top of the water and on the water float on the water, that is known as a houseboat. Tourists who come to Srinagar love to stay in houseboats. Houseboat can be as long as 80 feet and around 9 to 8 feet wide. And this is the another houseboat, but it's look like a different, so it is known as the डोंगा. जो टूरिस्ट के लिए होता है वो ये है हाउस बोट. ओके, ये 18 फीट लंबा होता है और 8 to 9 फीट चौड़ा होता है. सॉरी, एंड दिस इज अ डोंगा एंड इट इज़ अ लोकल हाउस बोट वेयर द श्रीनगर्स पीपल लिव इन. दैट इज डोंगा. दिस बोट कैन बी सीन इन डल लेक एंड झेलम रिवर. फ्रॉम इनसाइड द डोंगा इज जस्ट लाइक अ हाउस विद द डिफरेंट रूम्स. Here in another picture you can see a beautiful carving on wood. It is on the ceiling of houseboat and some big houses. This design is called Khatam Band, which has a pattern that look like jigsaw puzzle. See, it's look like a puzzle, but it is a design which is made on the boats. Now this in village of Kashmir, houses are made from stone, cut and keep one on top of other and coated with mud. Wood is also used. The houses have sloping roof. And now why should they keep sloping roof? Because of the snowfall. In Kashmir every day snowfalls happen. हर दिन snowfalls होता है. तो अगर flat roof रखेंगे तो वो snowfall वहाँ पे स्टक हो जाएंगे, जम जाएंगे. इसलिए वहाँ पे स्लोपिंग रूफ रखे जाते हैं ताकि वो आसानी से फिसल कर गिर जाए. एंड हियर लुक सो ब्यूटिफुल विंडो. सो सम ओल्ड हाउस हैज अ स्पेशल टाइप ऑफ विंडो विच कम आउट ऑफ द वॉल, दैट इज कॉल्ड डाब. It has beautiful wood pattern. It is wonderful to sit here and enjoy the view. कश्मीर के ना बहुत सारे घरों में स्टेप के विंडोज़ होते हैं जो वॉल से बाहर निकल जाते हैं और वो बहुत सुंदर दिखते हैं बाहर के व्यूज़ को एंजॉय करने के लिए. And the old house here are made of stone, bricks and wood, and the door and windows have beautiful arch and that call is mehrab. So there are a different pattern and design which did not in our houses. It's only found in Kashmir, like houseboat, donga, and khatam band, then dab, then mehrab. All these things are found only in Kashmir. Now, when I, means Gaurav Jani, started my journey, I had not imagined that in one state I would see so many different kinds of houses and lifestyles. I had a wonderful experience of living on the mountains in Leh and another of living on water in Srinagar. I saw how both of the houses in this area were made to suit the climate. See, this is the another type of boat. देखो यहाँ पे ये another type का बोट है. देखिए जो ओपन है एक साइड से, सॉरी सभी साइड से, ओनली ऊपर शेड है. ये एक्चुअल में वहाँ झेलम जो रिवर होता है ना, वहाँ पे जैसे हम करते हैं ना बोटिंग के लिए बोट, यहाँ पे ऐसी बोट यूज़ की जाती है जिसको शिकारा कहा जाता है. शिकारा, राइट.
जब गौरव जानी ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था कि इतने सारे हाउसेस और लाइफस्टाइल उनको देखने को मिलेंगी। माउंटेन्स में घर, कुछ घर पानी में, कुछ घर ऐसे बने हुए जो कि वहाँ के क्लाइमेट को सूट करे। नाउ इट्स टाइम टू रिटर्न टू होम। So Gauravjani, again it was time to move on. In Jammu I saw houses like I have been seen in Mumbai, the same cement, brick, steel and glass. These houses are very strong but they are not as special as house I was lucky to see in Leh and Srinagar. अब जब वो जम्मू पहुंचा तो वैसे ही हाउस थे जैसे कि उसके मुंबई में थे, कोई स्पेशल हाउस नहीं थे। After a long journey, Loner and I were about to reach Mumbai. My heart felt heavy. I also felt that my motorcycle did not want to come back. I was happy that I had learned and experienced so many new things. I had also brought back some memories in my cameras. बहुत टाइम के बाद जब लोनर और गौरव जानी वापस मुंबई पहुँचे तो उनका दिल भर आया था, क्योंकि वो जाना वापस नहीं आना चाहते थे और गौरव जानी को ऐसा लगता है कि उसका मोटरसाइकिल जो था वो भी नहीं आना चाहता था। बट गौरव जानी बहुत हैप्पी था क्योंकि उन्होंने बहुत डिफरेंट सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की थी। कोल्ड डेजर्ट, रेबो, चाहे वो ताशी का घर हो, श्रीनगर का हाउस बोट हो, डोंगा हो, डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स हो विंडो और डोर्स के, ये सारी चीज़ें गौरव जानी के लिए बहुत अलग थी। अगर आप भी ऐसे कहीं बाहर जाओगे तो ऑफ कोर्स यू ऑल्सो एक्सपीरियंस अ डिफरेंट थिंग्स। और उन्होंने ये सारी चीज़ों को अपने कैमरे में कैप्चर भी कर लिया था। And of course this was not the end. Next time when Loner and I get bored of the city, we will again set out for a new journey. ये कोई आखिरी जर्नी नहीं थी। जैसे गौरव जानी अगर बोर होंगे तो वो और लोनर फिर से एक नई जर्नी शुरू करेंगे। देखिए वहाँ जो कश्मीर है, वहाँ एवरी लेन इन कश्मीर हैज़ अ बेकरी। कश्मीरी पीपल डू नॉट कुक रोटीज इन देयर होम, दे बाय इट फ्रॉम सच बेकरीज। वहाँ के लोग रोटी नहीं बनाते, ओके, वहाँ के लोग ब्रेड खाते हैं जो कि बेकरीज में हर जगह कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। सो स्टूडेंट, हियर योर चैप्टर विल completed. Chapter number 13 is completed here. I will ask you some questions. You have to get the answers in the comment section with your name and please मैंने जो आपको वर्कबुक में करेक्शन दिया था उसको कर लीजिएगा। चैंगपास कॉल दिस लेखा वेयर दे कीप sheep and goats. Okay, so please like and subscribe my channel and thanks for watching.